بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله ورسوله صدق الله العظيم. شروع واحد کی وحدانیت سے جو واحد اس کائنات کا مالک ہے. درود ان پر جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں پر نظر آئے. جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق کے گلزار. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں انوار خان یوسف زئی اور میرے ساتھ موجود ہیں سندر سلی. ہم دونوں کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عشق سیام میں. ناظرین محترم، آج ہم نے 7ویں روزے کی افطار کیا ہے اور ہم 8ویں روزے کی سحری کی طرف گامزن ہیں، اور اس دوران کا جو وقت ہے اس میں آپ کو ہم اپڈیٹ کرنے، آپ کو ریسوسیٹیٹ کرنے، آپ کو پروڈکٹیو گفتگو مہیا کرنے اور سحر حاصل گفتگو اور معلوماتی گفتگو آپ تک پہنچانے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. میں بلا توقف آگے بڑھوں گا اور بنا توقف میں بڑھوں گا اپنے مہمان کے ساتھ، اور مہمان کا تعارف کرواتے ہوئے ایک بار پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ایک شخصیت ہمارے پاس، ایک نہیں دو شخصیت ہمارے پاس ایسی ہیں جو کہ پہلے روزے سے ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھی ہیں، اور صرف یہ مقصد لے کے اور یہ جذبہ لے کے کہ آپ لوگوں کو ناظرین محترم کچھ دینا ہے. اس رمضان میں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی نالج آپ کو دینے ہیں جو آپ کے زندگی میں بہت ہی زیادہ انقلاب برپا کریں. میں بنا تکلف و توقف تعارف کرواؤں گا ہمارے بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھے قابل احترام کے ساتھ معاشرے میں بڑی مقبول شخصیت ہیں. جہاں جہاں ان کا نام لیا جاتا ہے وہاں وہاں ان کی تعریف کے ساتھ ساتھ ان کی تائید بھی کی جاتی ہے. کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. حافظ ارشد رفیق صاحب، السلام علیکم سر. خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں حضرت؟ کیسے مزاج؟ ماشاءاللہ حضرت، جو کل بھی آپ ٹوپی شریف میں، آج بھی آپ ٹوپی شریف میں بہت ہی زیادہ خوبصورت کے حامل ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بنا تکلف بنا توقف میں اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھوں گا. علامہ ہیں، عالم دین ہیں، نوجوان کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو علم کا ذخیرہ ہے، چاہے وہ روحانی علم ہو، چاہے وہ شرعی کا علم، شریعت کا علم ہو، طریقت کا علم ہو، ہر طریقے سے یہ عوام الناس کے اندر ایک بیداری پیدا کرنے کے لیے، عوام میں ایک علم کا انقلاب پیدا کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. جہاں جہاں بھی ان کی بات کی جاتی ہے وہاں صرف ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ جی جناب آپ کی شخصیت بڑی انقلابی ہے، آپ کی شخصیت بہت ہی زیادہ وسیع ہے. کسی تعارف کے محتاج نہیں. خواجہ علامہ خواجہ آفتاب صاحب، السلام علیکم. خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسے مزاج آپ کے؟ ماشاءاللہ بالکل. علامہ صاحب ماشاءاللہ حکمت بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور یہ بھی ایک کہ ساتھ ساتھ یہ طبیب بھی ہیں. بالکل. تو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمیشہ ہی ہماری نالج میں اضافہ کرنے کے لیے، ہمیں نئے نئے طریقے سکھانے کے لیے، ہمارے اکاؤنٹس کو پروموٹ کرنے کے ہمیں طریقے بتایا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ جو کہ گوگل سرٹیفائیڈ ہیں اور 100+ آپ نے ایوارڈس جیتے ہوئے ہیں. تو میں ظاہر ہے تمام لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری مراد ہے جناب عدنان شیخ صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. اور بالکل ہمارے ساتھ انوار بہت ہی خوبصورت خوش لہن ثنا خواں موجود ہے، بہت ہی پیاری آواز کی مالک ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں انم فیروزی. السلام علیکم.
कैसी हैं नम आप, ठीक है? माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आज का जो हमारा मौजू है बहुत ही खूबसूरत मौजू है और बहुत ही ज़्यादा संजीदा मौजू है। बिल्कुल। जो लोग ज़हनी तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं, जो लोग ज़हनी मुतनफ़िर रहते हैं, जो लोग इस सोच में घिरे हुए हैं कि जी रमज़ान में अगरचे किसी का इंतकाल हो जाए तो उसका मामला क्या बनेगा, वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, डायरेक्ट जन्नती है वो, या फिर उसका भी हिसाब किताब होगा, क्या सूरत हाल है। इंतकाल होने वाला वो शख्स, वो मुसलमान जिसका रमज़ान में इंतकाल हुआ, इसकी क्या फ़जीलत है, उसके हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में क्या हमें मालूम होता है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले मैं जाऊँगा ख्वाजा आफ्ताब अहमद साहब के पास और इनसे पूछने की मैं जुर्रत करूँगा और इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि हज़रत ये बताएँ सबसे पहले अल्लामा साहब कि जो लोग हम देखते हैं कि रमज़ान मुबारक में उनका इंतकाल हो जाता है तो आम राय कही जाती है कि जी ये जन्नती हैं, इनसे कोई हिसाब किताब नहीं होगा, इनके बड़े दर्जात हैं, बहुत आला हैं। कि दीन भी यही कहता है, कुरान भी यही कहता है, हदीस भी यही कहता है, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। माशाल्लाह। सूरत रूम सूरत नंबर 30 आयत नंबर 40। माशाल्लाह। रब ताला ने फरमाया अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम, अल्लाह वो है जिसने तुमको पैदा किया, बेशक। सुम्मा रज़क़कुम, फिर वो तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाता है, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें ज़िंदा करेगा, फिर वो तुम्हें उठाएगा। फ़लसफ़ा हयात रब ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में वाज़ेह फरमाया कि रब ताला की वो ज़ात है कि जिसने तुम्हें पैदा किया है और मौत भी बरहक है। इसको मौत के बरहक होने को चाहे वो मुसलमान हो या दुनिया के किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो ये जानता है कि मौत आनी है। अब जिस तरह के आपने सवाल किया कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर किसी शख्स को मौत आती है बिल्कुल, तो उसके बारे में, क्योंकि रमज़ान का महीना हमारे यहाँ बहुत फजीलत वाला समझा जाता है और रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने को हम बड़ा बाबरकत और बड़ा एहतराम वाला जानते हैं। और क्यों ना जाने, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये बशारात अता फरमाई कि इस महीने में रब ताला की रहमतें मजीद बढ़ जाती हैं, रब ताला अपने बंदों पर मेहरबान हो जाता है। बिल्कुल। अब अगर रब ताला एक बंदे पर रमज़ान के महीने में मेहरबान होता है और इसी महीने में अगर उस बंदे को मौत आती है तो इसके हवाले से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस मुबारक में मिलती है। हुलियतुल औलिया किताब में इसको जिक्र फरमाया कि आप फरमाते हैं कि जो शख्स रमज़ान मुबारक के महीने में जिसका इंतकाल हो, अल्लाह तबारक व ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाए। अल्लाहु अकबर, अगर माशाल्लाह। किसी शख्स का इंतकाल रमज़ान के महीने में होता है, उसकी वजह यह है कि रमज़ान का महीना बरकतों वाला है और रमज़ान मुबारक का जो महीना है, इस महीने में रब ताला ने शयातीन को कैद फरमा दिया और मोमिनों के लिए नेकियों की राहों को हमवार फरमा दिया। अब जब इंसान मरता है, इसका एक लॉजिक बयान करूंगा आपके सामने। जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है ना, तो दो तरह की कैफियत होती हैं। एक तो ये होता है कि मरने वाला मरा और हमें पता नहीं चला, हमारे इल्म से गाफिल एक शख्स किसी ऐसी जगह पे मर गया। लेकिन अगर किसी शख्स को आपने मर की हालत में देखा हो, मरते वक्त की हालत में देखा हो, तो मरते वक्त इंसान अल्लाह की जानिब लौ लगाता है, वो रुजू करता है अल्लाह की तरफ। दुनिया उसे जैसी भी गुजारी हो, वो जितना ही गुनाहगार हो, लेकिन जब उसकी मौत का वक्त आता है तो मौत के वक्त फितरी तौर पर वो अल्लाह की जानिब गामजन होता है। अब मैं इसकी एक लॉजिक बयान करूंगा कि क्यों रमजान का महीना मरने वाले के लिए ज्यादा फजीलत का हामिल है। आपने सुना होगा, हदीस मुबारक है, फरमाया कि रमजान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला नेकियों का अजर बढ़ा देता है। बिल्कुल सही, नेकी का अजर बढ़ा दिया जाता है। अगर कोई शख्स नफिल पढ़े, नफिल का सवाब फर्ज के बराबर, बिल्कुल फर्ज का सवाब 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। फरमाया अगर कोई शख्स रमजान के महीने में 1 रुपया सदका करे और रमजान के अलावा 70 रुपए सदका करे तो ये एक बराबर, बल्कि रमजान का फिर भी इससे अफजल। तो इसी तरह अगर इसी मिसाल को लिया जाए तो रमजान के महीने में अगर किसी को मौत आएगी और मौत के वक्त जब वो अल्लाह को याद करेगा तो उसने अगर एक बार अल्लाह कहा दिल से, तो गोया कि उसने 70 बार अल्लाह को पुकारा। अच्छा, अवाम ने इस हवाले से तज़ब्ज़ुब का भी शिकार है अल्लामा साहब किबला कि एक शख्स जो कि शराबी है, एक शख्स जो कि हराम काम में बहुत ज़्यादा मुब्तला है, किसी तौर पे उसने काम नहीं छोड़ा, एक शख्स जिसने खुदकुशी कर ली हो, हम ये भी बात कर लें, वो रमज़ान में चले गया इस दुनिया से, तो उसके लिए भी यही ख्याल रखे जाएगा, यही सोच रखी जाएगी?
دیکھیں بات یہ کہ ہمیں جو حکم دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ حسن ظن کا پہلو برقرار رکھنا ہے، اور خاص طور پر جو مر جانے والا ہے اس کے حوالے سے منع فرمایا سختی سے کہ مرنے والے کے بارے میں اس کی جو برائیاں ہیں، جو اس کے عیب ہیں، ان کو نہ ٹٹولا جائے. صحیح. اس سے سختی سے شریعت مطالعہ نے منع فرمایا کہ جو ہے وہ مرنے والے کے عیب کو ٹٹولا مگر جائے. علامہ صاحب یہاں تو یہ جو موت ہے جس کا ذکر ابھی انوار نے کیا کہ کوئی سوسائڈ اٹیمپٹ کرتا ہے، خودکشی جو ہے وہ اپنی جان کو خود ظلم کر رہا ہے، تو پھر یہ تو موت کا حکم بھی بالکل تبدیل ہو گیا نا. اور پھر واضح طور پر ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ شخص حرام موت مر رہا ہے. کیونکہ دیکھیں کسی کے ایمان کے لیے تو ہمیں یہ لازم ہے نا کہ اگر آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں. تو پھر اللہ کی رحمتیں اور جتنی بھی اس رمضان کی برکتیں ہیں وہ سب ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. تو یہاں پر تو ایک مسئلہ ہی دوسرا ہے کہ موت ہی حرام اٹیمپٹ کر لی ہے. جی یہاں پر انہوں نے جو سوال کیا اس میں دونوں باتیں شامل کی کہ ایک تو بات یہ تھی کہ ایک شخص گناہگار تھا، ٹھیک ہے، اس نے بہت سارے گناہ کیے لیکن موت اس کی جو ہے وہ حرام پر نہیں ہوئی، جیسے یعنی خودکشی سے ہٹ کر اس کو بات کرتے ہیں، خودکشی سے ہٹ کر طبی موت ہوئی یا ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کسی بھی طریقے سے اس کی موت ہو گئی. تو اب اس صورت میں جو اس کی زندگی بھر کے گناہ تھے، رب تعالیٰ غفور الرحیم ہو سکتا ہے کہ اس نے آخری وقت میں توبہ کی ہو اور اس کی توبہ رب تعالیٰ نے قبول کر دی ہو. اس کا دلوں کے حالوں کو ہم نہیں جانتے، رب کی رحمت کب کس پر مہربان ہو جائے یہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن جو شریعت مطالعہ نے ہمیں ظاہری اسباب کے بارے میں بیان فرمایا، ہم اسی چیز کو بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایسی موت اختیار کرتا ہے، یعنی خودکشی کرتا ہے، خود کو موت کے منہ میں جو ہے وہ زبردستی ڈالتا ہے رب تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے، تو ایسی حرام موت کے حوالے سے جو ہے وہ صاف طور پر واضح طور پر فرمایا گیا کہ ایسا شخص جو ہے وہ حرام موت مرنے والا، یعنی خود کو موت منہ میں خود ڈالنے والا، رب تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والا ہے. چاہے وہ رمضان میں ہو کرے یا کسی بھی مہینے میں کرے یا کسی بھی جگہ پہ کرے، یا چاہے وہ کعبۃ اللہ کا حرم ہو، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو، کسی بھی حرام کام حرام ہے وہ کہیں بھی کیا جائے، ٹھیک ہے نا، غلط کام غلط ہے. رمضان میں تو ویسے ہی گناہ بھی ڈبل ہے نا، رمضان کے مہینے میں پھر مزید اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے. تو اس چیز سے اگر یہ بات ہم نے ٹاپک چھیڑ ہی دیا ہے تو ناظرین کو یہ ہم بتاتے چلیں کہ یہ جو خود کے لیے موت کو ایکسیپٹ کرنا، خودکشی کرنا، دنیا میں دیکھیں جتنے بھی مسائل آ جائیں، جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، ہم خدا کے بندے. میں نے آج شروع میں آیت پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے اور وہی موت دے گا. لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، لوگ پریشانیوں کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، لوگ کسی شخص کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، لوگ کسی جاب کے جانے کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں. دیکھیں رازق کوئی نہیں ہے، رازق اللہ ہے. اس نے رزق دینا ہے اور اس نے موت بھی دینی ہے. اس نے کب کہا کہ میں موت نہیں دوں گا؟ ایک وقت آنے پر موت دے گا. اگر کوئی شخص بیماری میں ہے، سخت بیماری میں مبتلا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس بیماری سے نجات پا جاؤں موت کے ذریعے سے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کسی مومن کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ رب تعالیٰ اس سے غافل دیتا ہے، رب تعالیٰ اس کے کانٹے چبھنے کے بدلے میں بھی اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور سراسر اس کے اس لمحوں میں جب اس کانٹے چبھنے کی اس کو تکلیف ہوتی ہے، رب تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے. بے شک اللہ کی رحمت بڑی ہے، اور اس سے اللہ کی رحمت بڑی ہے، اور اللہ کی رحمت ہم گناہ گاروں پر اتنی زیادہ ہے کہ جس کا شمار بھی کریں تو نہیں کر سکتے. علامہ صاحب آپ نے جو ایک نقطہ بیان کیا ہے نا ہماری عوام کے لیے، وہ بہت خوبصورت ہے. چاہے کسی نے غور کیا یا نہیں کیا، میں پہنچ گیا کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی علیل ہے اور بہت ہی زیادہ علیل ہے اور بستر مرگ پر ہے، اس کے رشتہ دار ہم نے دیکھا ہے کہ یار یہ اس کو ہم تڑپتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، اس کو بیمار دیکھ نہیں سکتے، اس دنیا سے چلے جائے تو بہتر. یہ غلط ہے، شریعت کی روح سے غلط ہے یہ بات. یہاں میرے ذہن میں اس حوالے سے ایک سوال بھی آ رہا ہے کہ اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے، ہم اپنے ارد گرد سنتے بھی ہیں کہ کوئی انسان اگر لا علاج مرض میں مبتلا ہے، جو ظاہری طور پر لا علاج ہے، تو اکثر ہمارے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہ کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے اور اس کے لیے معاملہ فرما دے. اس طرح کے بھی ہم معاملات دیکھتے ہیں. مگر یہ بتا رہے ہیں کہ شریعت کی روح سے، یہ دین کی روح سے، یہ اسلام کی روح سے یہ بات بالکل ہی غلط ہے. یہ دین نے منع کیا ہے اس کا کہ اللہ پاک نے جتنی زندگی دی ہے آپ اس کی زندگی کے لیے دعا کریں. اگر وہ کسی بیماری یا اس میں مبتلا ہے تو ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کے کچھ ایسے گناہ ہوں، کچھ ایسی خلوتیں ایسی ہوں جو رب تعالیٰ کو ناپسند ہو، اور رب تعالیٰ اس کی ان خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے اس کے کچھ آزمائش لے رہا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی چھوٹی سی آزمائش آخرت کی دائمی رہنے والی زندگی سے بہتر ہے. اچھا کیا کہنا، خوبصورت، زندہ باد. کیا کہنا، بڑی اچھی گفتگو فرما دیتے ہیں. میں آؤں گا ارشد رفیع صاحب کے پاس. آپ کیا کہتے ہیں حضرت؟ پہلا سوال تو یہ آ گیا کہ جی رمضان میں
وفات پانے والوں کی کیا فضیلت ہے. اچھا ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. اور دوسری جو خودکشی کر کے جو رمضان میں اس طرح کی جو حرام موت کی طرف جاتے ہیں, چاہے وہ رمضان ہو, چاہے وہ شعبان ہو, چاہے وہ محرم ہو, کوئی سا بھی مہینہ ہو یا کوئی سی بھی جگہ ہو یا کوئی سی بھی نسبت, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ایسی موت کے حوالے سے دین نے کیا کہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی ماشاءاللہ. والبعث بعد الموت. ہمیں حکم دیا گیا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر, اللہ پر, رسول پر, کتابوں پر ایمان لانے کا حکم عطا فرمایا گیا ہے. ہمیں تھوڑا سا اس معاملے کو سمجھنا ہوگا. ایک ہوتا ہے عدل, اور عدل کے ساتھ ایک دوسرا چیز ہے جو فضل ہے. ماشاءاللہ. ہم مرنے والے پر ہم قیاس رائیاں کرتے ہیں کہ بھائی اگر یہ شخص جو رمضان میں مرا ہے, آپ دیگر احادیث بے شمار پڑھی ہوئی ہیں, علامہ صاحب نے ماشاءاللہ اس کو بتایا بھی, تو ہم عبادت کرتے ہیں کہ مرنے والا یہ تو گناہ گار تھا, یہ تو شرابی تھا, یہ تو دیگر چیزیں تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے یہاں ایک گانا گاتی کہ نور جہاں صاحبہ 27 رمضان کو ان کا انتقال ہوا تھا, تو لوگوں نے بڑا کلام کیا اس پر بھی. تو یہ ذرا کچھ معاملہ رب کا اور بندے کا معاملہ ہے, اس پہ میرے خیال سے کلام نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات جو میں نے نقطہ پیش کیا ہے, ایک تو میں نے کہا ہے کہ عدل ہے, اللہ عدل کر رہے کسی سے تو کہے تیرا حساب ہوگا پورا, اور اللہ تعالیٰ اگر فضل کرنے پر آئے تو اس نے تو ہمیں کھنکھناتے ہوئے مٹی سے پیدا کیا, 99 قتل کرنے والے کو یہ معاف کر کے بولے گا کہ جاؤ جنت میں. کیا کہنا؟ اور ایک بیج سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا درخت پیدا فرما دیا, تو اللہ کی قدرت کی کیا بات کی جا سکے گی. تو اس پر واضح احادیث موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شرح صدور میں اس کو لکھا, ان عذاب القبر یرفع عن الموت فی شہر رمضان, کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. اب اس پہ کلام ہے کہ بہت سارے روایت کو لوگ بتاتے ہیں ضعیف روایت ہے, لیکن یہ جب ہم بات کرتے ہیں فضیلت کے باب کی تو ہم ضعیف روایت کو بھی لیتے ہیں. ہو سکتا ہے ناظرین میں سے کوئی ایسا ہو کہ فضیلت میں تو ہم کہ اللہ چاہے تو ہم تو اس کے فضل پر ناز کرنے والے لوگ ہیں, اللہ چاہے اپنے فضل سے جس کو چاہے اسے بخش دے, یہ اس کا اس کے بندے کا معاملہ ہے, تو ہمیں حسن ظن قائم کرنے کا حکم ہے. اب اس میں ایک معاملہ بہت اہم ہے کہ دیگر اکابرین نے, محدثین نے جہاں بتایا ہے کہ بھائی حدیث کمزور ہے, لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی معاملات اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ بھائی ہم رمضان میں کوئی شخص انتقال کر جائے اور دیگر اس کے ساتھ جو معاملہ ہو, تو یہ رمضان تو اس پر برکت کا معاملہ ایسا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ میں پہلے آسمان پر عرش لگا دیتا ہوں, میں اس قدر مہربان ہو جاتا ہوں, اور میں کیا کرتا ہوں کہ ہم جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں. اس پر تحقیق پہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایون اگر کوئی غیر مسلم رمضان کے دنوں میں انتقال کر جائے تو محدثین لکھتے ہیں کہ رمضان میں اس پر تخفیف کر دی جاتی ہے. تو کیا صرف یہ رمضان کے لیے یہ مثال ہے, اگر کوئی شخص رمضان میں اس کا انتقال ہو رہا ہے تو کیا صرف رمضان کے مہینے میں ہی اس پر یہ سارے معاملات ہوں گے, یا رمضان کے بعد بھی اس کے لیے وہی معاملہ ہوگا؟ محدثین کے مطابق جو احادیث کتب میں باتیں موجود ہے کہ اللہ سے حسن ظن قائم کیا جائے گا, اور اللہ چاہے تو اسے پھر تا قیامت اسے عذاب قبر نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے حشر تک کا معاملہ تو سیدھا ہو گیا. اب حشر کے معاملے میں اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. میں کہتا ہوں اللہ نے جس کھاتے کو بند کر دیا, مجھے لگتا ہے اللہ کے شان کے کچھ وہ جو رحمان اور رحیم ہے وہ جس کھاتے کو بند کر دے گا انشاءاللہ پھر دوبارہ نہیں کھولے گا. اللہ چاہے تو کھولے, یہ اس کے عدل اور اس کی فضل کی بات ہے. واللہ اکبر. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی, شرمندگی شرمندگی شرمندگی. کیا کہنا حافظ صاحب؟ ماشاءاللہ ہمیشہ ہی بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. حافظ صاحب میں عدنان بھائی آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آج کل ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ ان نیسیسری گروپس میں لوگ ہمیں ایڈ کر دیتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتا, اور ہمیں کوئی بھی ایک دم ہم فون چیک کرتے ہیں تو ہم کسی نئے گروپ کے اندر جو ہے وہ شامل ہوئے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اتنی زیادہ اس میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری میموری ڈسٹرب ہونے لگ جاتی ہے, ہمارے فونز ڈسٹرب ہونے لگ جاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کوئی ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو سیکیور کر سکیں کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی ہمیں کسی بھی گروپ میں ایڈ نہ کر سکے؟ جی بالکل, بہت اچھا سوال ہے. اچھا, یہ اخلاقی طور پہ بھی غیر اخلاقی حرکت ہے یہ بالکل. جی نہیں, یہ بالکل ایسی ہے کہ کسی گھر پہ بغیر ڈاک کے آپ داخل ہو جائیں تو یہ بالکل اسی طریقے سے تصور کیا جاتا ہے. اور اگر رہی میری بات, جو لوگ مجھے ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ میں
सिर्फ प्रोग्राम में बैठ के या कोई किस्म की कोई बातें नहीं बता रहा होता, बल्कि ज़िंदगी के अंदर जब कोई चीज़ कोई कर रहा होता है तो मैं उसको तरबियत दे रहा होता हूँ। जानता हूं सर, बिल्कुल हम तरबियत जानते दे रहा हैं होता सर, हूँ इस उसको हवाले कि आप ऐसे नहीं, इस तरह और इस तरह नहीं, इस तरह करें। कई मैंने वीडियोज़ भी डिलीट करवाई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगती थी। बहरहाल मैं सवाल के जवाब पर जी। आता हूँ। देखिए चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर प्लेटफॉर्म चाहता है कि जो उसका यूज़र है वो अच्छे अंदाज में उसको और ऐसा अंदाज के अंदर उसका इस्तेमाल करे बिल्कुल। जिससे तमाम ऑडियंस को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। सही। अच्छा, ये जो असल में सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है ना वो बेदरेक किया जाता है। बस उसका इस्तेमाल करा, ग्रुप बनाना है, आपने जहन बनाया और बस लोगों को ऐड करना शुरू कर दिया, फिर आप थोड़ी देर के बाद देखते हैं कुछ लोग ना उसमें से लेफ्ट कर जा रहे होते हैं, जबकि इसका प्रॉपर तरीका है। अगर सवाल आपका जो है मैं पहले मैं उसके जवाब पे जाऊँगा। देखिए सबसे पहले तो आप अपने खुद के अपनी जो आईडी है, चाहे वो फेसबुक की आईडी, जैसे मैं पहले प्रोग्राम में बता चुका हूँ, सबसे पहला जो काम होता है जब आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करें। सही। अपने आप से मुराद क्या है कि अपनी आईडी को प्रोटेक्ट करें, अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट करें। मोबाइल भी प्रोटेक्ट है। मोबाइल भी प्रोटेक्ट होता है, सिर्फ आईडी प्रोटेक्ट, लोगों को अपनी आईडी की फिक्र होती है लेकिन मोबाइल की भी प्रोटेक्शन होती है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो जरूर नहीं, हम बताऊंगा। इंशाल्लाह इसी के बाद अगला सवाल आपसे वही चलें, बिल्कुल रखेंगे। ठीक हो गया। तो आप फेसबुक व्हाट्सएप पे जाते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर 3 डॉट है, 3 डॉट के अंदर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप चले जाते हैं सेटिंग के अंदर। सेटिंग में जाने के बाद आप जाते हैं प्राइवेसी के अंदर। प्राइवेसी के अंदर आपको मिलेगा ग्रुप का ऑप्शन। ग्रुप में 3 ऑप्शन मिलते हैं, उसके अंदर माई कॉन्टैक्ट्स में चले जाए और तमाम जो कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास जो मोबाइल के अंदर जितने भी हैं उन तमाम पे चेक लगा दें और उसको एक्सेप्ट कर लें। तो इससे ये कोई भी चाह के भी आपको ऐड नहीं कर सकता। फिर उस सूरत में ये होगा कोई अगर करना चाहता है तो एक नोटिफिकेशन आपके पास आएगी जिसके ऊपर आपकी सवादीद है, अपनी मर्जी है कि आप उसको हम एक्सेप्ट कर उसको सकते हैं। कहने के वो हमसे इजाजतनामा तलब जी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और इससे ये होगा कि आपकी जो दर्द सर है वो छूट जाता है। इसके अंदर थोड़ी सी ना अखलाकियात का भी मामला होते हैं। कोई बहुत बड़े अच्छी है जिनकी आप बहुत अदब करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपको ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, लेकिन आप मसला ये है कि आप उनको निकल भी नहीं सकते, अब क्या करें। तो ये बड़ा अजीब और गरीब सा मसला है। अच्छा, इससे ये भी तो होता है ना कि आपकी मेमोरी वगैरह बहुत ज़्यादा फिलअप हो जाती है, तो कोई ऐसा तरीका है कि हम ग्रुप में भी रहें और हमारी मेमोरी ना उससे डिस्टर्ब हो? जी आर्चिव कर लें, उसके अंदर अब डेटा को क्लिक कर लेते हैं और उसके अंदर जितना डेटा जा रहा होता है वो रंबरिंग नहीं करता, बफरिंग नहीं करता और वो डेटा वहीं का भी एक महफूज होता है। मीडिया विजिबिलिटी का हाँ इसमें वो भी है। option फिर होता उसका 90 डेज पे चले जाएं, 25 डेज पे चले घंटों भी ले जाएं तो वो डेटा चला जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ बताऊँ, देखिए आपने सवाल किया तो मैंने उसका जवाब दिया, हॉबी और क्लियर आंसर। लेकिन एक और चीज़ बताऊँ, इतना आसान है व्हाट्सअप, इतना आसान कर दिया व्हाट्सअप को कि आपने देखा होगा व्हाट्सअप पे ना कुछ इंग्लिश के अंदर लोग अगर टॉक कर रहे हैं तो किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उसको बड़ी मुश्किल होती है। तो उसका क्या किया, जब मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, आप वो जो कंटेंट जो टेक्स्ट सामने वाले ने आपको भेजा उसको पहले सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद एक नया इंटरफेस खोलेगा, उसमें 3 डॉट पे क्लिक करें। उसके अंदर गूगल ट्रांसलेट करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट चेक करना चाहते हैं, इसकी मीनिंग लेकर आना चाहते हैं, अगर आप फिर भी नहीं पढ़ सकते तो वॉइस रिकॉर्डिंग में किसी भी जुबान के अंदर आप उसको सुन सकते हैं। माशाल्लाह, क्या तो कहना? बहुत आसान है, बहुत अच्छा जबरदस्त। अंदाज़ है, लेकिन बात यह है कि अवेयरनेस की और हमारे यहाँ बैठने का मकसद ये है कि छोटी छोटी चीज़ बातें हम उसको अवेयर करें। क्योंकि सबसे पहले दिन से मैं एक बात कहता रहा हूँ, जब तक मैं आ रहा हूँ, जब तक मेरी ज़िंदगी और जब तक मैं इस इवेंट प्रोग्राम में आ रहा हूँ, एक वर्ड मैं कहता रहूँगा कि जहाँ हम 50 से 60% के अंदर हम इस वक्त डिजिटलाइज है पाकिस्तान, सही। तो इंशाल्लाह 100% की तरफ कोशिश करेंगे, लेकिन अगर जाएंगे तो इसी तरीके से क्या मानेंगे। कहना है? बिल्कुल दुनिया पर उम्मीद है और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की हामिल खूबसूरत सना आवाज़ मौजूद की हैं। हामिल भी हैं। जिस तरीके से अदनान साहब कह रहे थे गूगल ट्रांसलेट कर देता है इंग्लिश को। हमारे साथ जो नाज़रीन मोहतरम नात खां मौजूद हैं वो अपने जज्बात को, अपने एहसासात को और वो इश्क और मोहब्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो अपनी अल्फाजों में अदा करेंगी, अपने सुर, अपने लहन, अपने गुदास में अदा करेंगी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं अनम फेरोजी, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या
दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह खुदा का जीते जी कर लूं नज़ारा सुभान या रसूल अल्लाह खुदा का जीते जी कर लूं नज़ारा या रसूल अल्लाह तुम ही हो बेसहारों का सहारा या बेशक रसूल माशाअल्लाह, क्या कहना है। तुम ही हो बेसहारों का सहारा या रसूल अल्लाह तुम ही को हर दुखी दिल ने पुकारा या रसूल अल्लाह तुम ही को हर दुखी दिल ने पुकारा या रसूल अल्लाह जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, खूबसूरत, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत ही प्यारे अंदाज में बहुत आपने प्यारे बहुत अंदाज में निभाया अपने कलाम को और बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा। हमारे क़ुलूब को मुनव्वर, हमारे क़ुलूब को सुकून बख्शा इनकी आवाज़ ने, इनके अंदाज ने, इनके इंतखाब ने कलाम के। नाज़रीन मोहतरम, यही गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। इसी हवाले से इसी मौजू पर हम बात करेंगे, मगर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं नहीं जाएगा, हम ब्रेक पर जाते हैं, अभी वापस आते हैं। आपने देखते रहना है इश्क़ सय्याम वीनस टीवी पे, और इस इश्क़ सय्याम में आपको हम इल्म से भी इश्क़ करवाएंगे, हम आपको फ़िक्र से भी इश्क़ करवाएंगे, तसव्वुर से, और आपको हम तहकीक से भी इश्क़ करवाएंगे कि जी किस तरीके से हमारे मुल्क में और हमारे शहर में और इस सूबे में और जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं उनकी ज़िंदगी में कैसा इनकलाब बर्पा हो सकता है। कहीं नहीं जाएँ, अभी गए और अभी आए एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुकून पाया है बेकसी ने, सुकून पाया है बेकसी निकल गया हूँ ख्याल हज़रत जब आ गया है तो गिरते गिरते
संभल गया हूँ। मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो। मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो। मरा नहीं हूँ गमे नबी में, मरा नहीं हूँ इश्क़े नबी में। लिबास हस्ती बदल गया हूँ। ख़याल हज़रत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या साहिबल जमाल व या सैयदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लकब नव्विरल कमर ला युकिनु सना कमा काना हक़्क़हु बादस खुदाए बुजुर्ग। तू ही किस्सा मुख्तसर, तू ही किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन मोहतरम, खुश ऐलान आवाज़ और बहुत ही मीठा और सोज़ो गुदास में पढ़ने वाली हमारी को होस्ट सुंदस अली बहुत अच्छे अंदाज में कलाम पाक पढ़ रही थी। जज़ाकल्लाह अनवार, बहुत शुक्रिया। और आपकी आवाज़ में अल्लाह पाक बरकत दे, आपके इस कलाम को बारगाह नबवियत में कबूल करे और आपके इस कलाम के सदक़े आपको मदीने और मक्के की हाज़िरी नसीब करे। जज़ाकल्लाह। मैं अल्लामा साहब के पास आऊँगा बिला तवक्कुफ़। अल्लामा साहब, रमज़ानुल मुबारक में सैयदा खातून जन्नत, उम्मत की माँ, कायनात की माँ सैयदा पाक फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी यौम विसाल, फिर हज़रत खतीजतुल कुबरा का भी यौम विसाल, फिर हज़रत आयशा का भी यौम विसाल। इन शख्सियात का यौम विसाल इस बात की कहीं हमें तरगीब तो नहीं दे रहा कि जो बेहतरीन लोग होते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में मकबूल लोग होते हैं वही रमज़ान मुबारक में उनका विसाल होता है। क्या कहते हैं? माशाल्लाह, सवाल अच्छा है और उसको मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट साथ मिलाऊंगा। आपके इसी लफ्ज़ से कि जो बेहतरीन लोग होते हैं वो रब को राज़ी करके दुनिया से जाते हैं। सुभान अल्लाह। वो रमज़ान हो या कोई भी महीना हो 12 महीनों में से, उनके लिए सारे महीने रब ताला ने सारे महीनों को बरकतें अता फरमाई हैं। तो जो रब ताला के महबूब बंदे होते हैं या रब ताला के मुकर्रब बंदे होते हैं वो रब को राज़ी करके जाते हैं। माशाअल्लाह। और यहाँ पर एक बात, क्योंकि रमज़ान में मरने के हवाले से हम जिक्र फरमा रहे थे कि रमज़ान में अगर किसी को मौत आती है तो इससे हवाले से एक रिवायत अभी मेरे जहन में आई कि रोज़े की हालत में यकीनन मुसलमान से उसने ज़न किया जाता है कि अगर रमज़ान में मरेगा तो रोज़े भी रखता होगा, मोमिन है तो मुसलमान से। तो रोज़े की हालत में मरने वाले के हवाले से एक हदीस मुबारक है। जनाब हज़रत सैयदतुना तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को मौत आए इस हालत में कि वो रोज़े से हो, जिस शख्स को मौत आए इस हालत में कि वो रोज़े से हो, फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत से उसे क़यामत तक के रोज़ों का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। अब बताएं इससे बढ़कर क्या फजीलत हो सकती है? आप एक रोजे के सवाब का अंदाजा लगा सकते हैं कितना होता है। और अगर किसी शख्स को रब ताला की जानिब से ये पैगाम हो जाए कि उसे क़यामत तक के रोज़ों का सवाब मिलेगा तो यकीनन उसके नामा आमाल में इस कदर नेकियां हो जाएंगी कि रब ताला जो है अपने रहम और करम से उससे जो है बख्शिश का परवाना अता फरमाएगा। इसी से रिलेटेड अल्लामा साहब एक और सवाल पैदा होता है कि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं कि जी हमें मौत आए तो मक्के शरीफ में आए, हमें मौत आए तो मदीना शरीफ में आए, हमें मौत आए तो फलां, हमें मौत आए तो इन बरगुज़ीदा शख्सियात के पड़ोस में मौत आए या इनके मज़ारात में मौत आए। तो
اس طرح کا خیال رکھنا اور اپنی موت کے لیے ایسی خواہش رکھنا، آپ کیا سمجھتے ہیں دین کیا کہتا ہے اس حوالے سے، شریعت کیا کہتی ہے؟ مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی۔ اللہ سبحان اکبر، اللہ، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں دین متین میں ہمیں جس طرح ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ شریعت میں سختی سے منع کیا گیا کہ موت کی تمنا نہ کی جائے، موت کی آرزو نہ کی جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ موت برحق ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا موت برحق ہے، مرنا تو ہے ایک دن۔ بالکل۔ تو یہ تمنا کی جا سکتی ہے، شریعت میں اس بات کی گنجائش ہے اچھا۔ کہ مجھے جب بھی موت آئے، رب تعالیٰ مجھے جب بھی موت دے میرے مقررہ وقت پر، تو اس وقت میں روزہ رسول پر حاضر ہوں اور مجھے موت ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ محبت، رسول اللہ سے بے پناہ محبت، عشق۔ جیسے عمر فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ دعا کی کہ اور لوگوں سے وصیت کی، فرمایا کہ جب میں مر جاؤں، جب میری موت ہو جائے تو میرے جنازے کو لے جا کر رسول اللہ کے دربار میں رکھ دینا اور اجازت طلب کرنا۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو ان کی اجازت طلب کرنا یا رسول اللہ کے ساتھ دفن ہونا، کئی بزرگوں کی یہ خواہش رہی کہ ہم رسول اللہ کے دربار میں دفن ہوں۔ اس کی وجہ کیا؟ خواجہ غریب نواز کیوں مدینہ چھوڑ کر نہیں جا رہے تھے؟ کیوں انہوں نے منع کیا مدینہ منورہ چھوڑ کر جو ہے وہ اجمیر جانے سے؟ یہ کتنا پیارا واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ نے ان کو فرمایا کہ معین الدین تم جاؤ، تمہاری ضرورت اجمیر میں ہے، وہاں جا کر دین کی خدمت کرو، تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، زیارت ہوئی، کہا کہ یا رسول اللہ میں نہیں چھوڑ کر جانا چاہتا مدینہ طیبہ، میں چاہتا ہوں کہ میں جب موت ہے تو یہیں پر ہو اور میں یہیں پر رسول اللہ آپ کی زیارت کر لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے معین الدین تم یہاں سے جاؤ، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تم جب ہماری زیارت کرنا چاہو گے ہم خود آ کر تمہیں اپنی زیارت کریں گے۔ اللہ اکبر، تو مدینے میں جو موت کی تمنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ کے قریب دفن ہوں گے، تو ہمارے ہاں تو ایک بڑی سادہ سی بات ہوتی ہے نا، کہ ایک سادہ سی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پہ مدفون ہو جہاں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی دفن ہو، تو اس کے قریب کی جو قبریں ہیں ان پر سے بھی عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اس کی برکت سے۔ تو جہاں رسول خدا خود جو ہے موجود ہوں، جہاں جو ہے اتنے سارے صحابہ کرام ہوں، اہل بیت کی جو ہے وہ سیدہ پاک کے بالکل نفوس قدسیہ ہوں، اگر ایسی جگہ پر مدفن ہونے کا ہمیں شرف مل جائے، مرنا تو ویسے بھی ہے، کہیں پہ بھی مر جانا ہے، کبھی نہ کبھی مر جانا ہے، موت آ جانی ہے، جسد خاکی کہیں نہ کہیں دفن ہونا ہے، لیکن کاش ایسا ہو کہ ہماری موت آئے اور جو ہے وہ مدینے کی فضا ہو، گنبد خضرا ہو، اور جو ہے وہاں پر جب موت آ جائے جنت البقیع میں ہمیں مدفن کر دیا جائے، تاکہ کل روز قیامت سب سے پہلے جن کا حساب کتاب ہوگا، سب سے پہلے جن کو اٹھایا جائے گا وہ جنت البقیع والے ہوں گے، اور انہی پر سے جو ہے وہ اعمال کو شروع کیا جائے گا، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امام شافعی، مجھے یاد آ گیا علامہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ مدینے میں درس دیا کرتے تھے، آپ حدیثوں کو سنانا، بتانا، حدیث کو سکھانا، آپ مدینے سے جاتے نہیں تھے باہر۔ ایسا امام شافعی کا معاملہ یہ بھی تھا کہ آپ جوتے نہیں پہنتے تھے مدینے میں۔ امام شافعی نے بھی مدینے سے باہر نکلنا پسند نہیں فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں مدینے سے باہر نکلوں اور موت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اپنی زندگی ایسی گزاری اور اللہ پاک نے پھر وہاں تو بالکل آرزو کا جو تعلق ہے، موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، لیکن موت کے بارے میں مانگنا شریعت نے جائز کیا کہ اگر کوئی یہ حسرت کرتا ہے یا آرزو کرتا ہے کہ مجھے مدینے میں موت آئے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس پر آپ کہیں کہ ضد نہیں پکڑ لینی چاہیے کہ میری موت ہی ایسے آئے، پر اللہ سے خواہش ظاہر کی جا سکتی ہے یا اللہ جب میری موت آئے تو مجھے مدینے میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرتا چلوں گا کہ عمر فاروق اعظم نے دعا فرمائی تھی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعلی موتاً فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی دعا تھی نا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا، تو شہادت کی موت طلب کرنا، کیونکہ میں نے پہلے کیا عرض کیا تھا کہ موت تو آنی ہے، موت تو برحق ہے، تو ہم اپنی دعا میں کیا ایڈ کریں گے کہ جب مجھے موت آئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی مجھے موت آ جائے، نہیں، یا جب میں مدینے پہنچاؤں تو اب میں کہوں کہ مجھے موت آ جائے، میں خودکشی کر لوں کہ یہی مر جاؤں، تو جب میرا رب مجھے موت دینا چاہے، جو میرے رب نے میرے لیے میری موت کا وقت مقرر فرمایا ہے، تو رب تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ اسباب پیدا فرما دے کہ اس وقت میں مدینہ پاک میں حاضر ہو جاؤں اور وہیں میری روح جو ہے وہ پرواز ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور دل چاہتا ہے کہ پھر ہم مزید سوالات جو ہے وہ اس میں شامل کرتے رہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں عدنان شیخ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔
जनाब हम बात कर रहे थे कि अपने व्हाट्सएप को हमने किस तरह सिक्योर कर लिया कि जी कोई अब हमें हमारी इजाज़त के बगैर किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता, तो क्या इस तरह से हम अपने दीगर अकाउंट्स को भी सेव कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन देखें इसमें मैं आपकी जो है तवज्जो एक और तरफ मुतवज्जो करना चाहूँगा कि आईडी ये तमाम चीज़ें तो होती कहाँ पर है, अकाउंट बनते कहाँ पर है, वो उसको अब एक्सेस होता क्या, वो है मोबाइल आपका। सबसे पहले तो मोबाइल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हम मोबाइल को प्रोटेक्ट ही नहीं करते। देखें मोबाइल जो है हमारा, जो मोबाइल हैक हो जाता है और हमें पता भी नहीं होता। अच्छा, जो आपने देखा होगा वेबसाइट हैक हो जाती है और वो सस्पेंड हो जाती है या उसके ऊपर हैकर आ जाता है और अपना एक मैसेज डाल देता है, फिर जाहिर बात है वो डिमांड करता है, उसकी मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। लेकिन ये जो हैकर है जो मोबाइल हैक कर लेता है, ये कभी भी नहीं बताता है कि आपका मोबाइल हैक हो चुका है। वो तो रोज़ाना की बुनियाद पे आपसे डेटा आपका ले रहा होता है। अब वो जो हैकर है वो पर्सनली स्पेसिफिकली वो आपकी तमाम डेटा को ऑब्जर्व कर रहा है, ले रहा है, या फिर वो कंपनी, मतलब बहुत सारे इस तरह की एजेंसियां, बहुत सारे इदारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा। और वो आपका पूरा का पूरा जो कॉन्टैक्ट, आपका डेटा है, आपकी पिक्चर्स, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी वीडियोस, आपके लम्हात, जो भी सारे मामला तो मोबाइल में कैद होते हैं, वो तमाम चीज़ें निकाल लेते हैं। अच्छा, और हम ये समझ रहे थे कि मोबाइल फ़ोन हमारे पास है तो ये सिक्योर है, जो इसमें है वो हमें मालूम है और इससे मालूम है। जी जी, जैसे कि मैंने परसों के प्रोग्राम में बताया था कि हम जब बैठे बात कर रहे होते हैं, जैसे इस वक्त हम बैठे, हम तमाम सबके पास जो हमारे पैनलिस्ट हैं सबके पास यहाँ पर, और पैनलिस्ट के तमाम जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, तमाम के पास मोबाइल मौजूद हैं और इस वक्त मोबाइल ऑफ हैं। ऑफ से मुराद है स्क्रीन ऑफ करी हुई है, लेकिन हमारी जो कन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत चल रही है, वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, वो सब जा रही है, वो स्पेसिफिक फेसबुक के पास जा रही है। अच्छा, अब हमारा जो मोबाइल हैक हो जाता है, वो सबसे पहले तो सवाल ये हैक होता क्यों है ना? सबसे अहम बात ये कि होता है क्यों, ताकि हम उसकी तरफ उसकी मतलब केयर करें। सही। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम कहीं जाते हैं तो हमें कहीं ऐसा वाईफाई, हमें कोई मौका मिल जाए, जैसे पब्लिक वाईफाई कहते हैं, कि हमें वो मिल जाए और हम उसको यूज़ कर लें। बहुत सारी गाड़ी जो सफ़र की होती हैं वो भी देती हैं, एरोप्लेन के अंदर भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो उसका इस्तेमाल ना करें। तकरीबन 80-90% कोशिश करें अवॉइड करें। जैसे ही आप उसको वाईफाई को कनेक्ट करते हैं तो वाईफाई से आपकी जो इलेक्ट्रिक चिप है वो डिटेक्ट हो जाती है और आपका सारा डेटा वहाँ से कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, इंटरनेट का एक्सेस आपको मिला है ना, बारीकियां हैं जी, आपका GPRS एक्टिव हो जाता है। ठीक है ना, इसी तरीके से जब आप किसी के लैपटॉप या किसी का सिस्टम आपके पास है, उसके अंदर आप अपने मोबाइल को कनेक्ट ना करें। मोबाइल कनेक्ट करने की सूरत के अंदर जाहिर बात है जब नेट आप सर्वर एक्टिव करते हैं तो VMLS एक चिप होती है जो कि एक्टिव होती है, जो कि पूरे सिस्टम के ऊपर कार फरमा होती है, वो डेटा रिमूव करना शुरू कर देती है। रिमूव से मुराद ये है कि अपना डेटा वहाँ से खाली कर रही होती है और आपका डेटा वहाँ पे नेट कर रही होती है। तो इससे आपकी जो है आईडी, आपका जो मोबाइल है वो डैमेज हो रहा होता है। इसके अलावा आप ये देखिएगा कि एक हैक करने की एक छोटी सी एक बात बताता हूँ, आपका अकाउंट जिस तरह हो जाता है, मिसाल के तौर पे अभी मैं एक लिंक किसी को सेंड करूं और वो एक लिंक के वजह से वो कोई क्लिक करे तो एक इंटरफेस खुलता है। इंटरफेस तो हमारे हाथ में होता है ना, तो इंटरफेस के अंदर आप फेसबुक, नाम ले रहा हूँ, फेसबुक का इंटरफेस यूज़ कर लें और उनसे पूछिए अपनी यूज़र आईडी और आप पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाएं, तो हम तो समझेंगे कि फेसबुक है। हमने जब आपसे लिया मोबाइल, यूज़ करा, मैं उसको लॉग आउट कर लूँगा, लेकिन वो पासवर्ड और आईडी चली गई। अब वो आपका बैन नहीं करेगा पेज को, ठीक है, और बैन नहीं करेगा और वो आपका जो चलता जा रहा है वो खुद भी चाहेगा कि आप बैन ना करें। अच्छा, ऐसा भी हम देखते हैं अदनान साहब कि हम जो चीज़ सोच रहे हैं, और अक्सरियत ये हमने खुद भी सुना है कि जो चीज़ सोच रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में हम मुसलसल बात करे जा रहे हैं, हमने अपनी एप्लीकेशन खोली फेसबुक, वो सामने आ गई। जी, मैंने आपको बताया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्टिव हुई है ना। मैंने आपको बताया कि हमारी जो कन्वर्सेशन, हमारी जो बातचीत है वो जा रही है रेगुलर बेसिस के ऊपर, और फिर जब आप मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर 1 घंटा मैं अपनी बात करता हूँ, मैं दे रहा हूँ तो मैं नेशनल ज्योग्राफिक ज़्यादा देखता हूँ, तो अब उन्होंने पता चल चुका कि जो अदनान साहब है, ये जो IP है, ये इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अब मैं जो भी कुछ देखूं, मिसाल के तौर पे मैं नाच सुन रहा हूँ, लेकिन ऊपर जो है ना नेशनल ज्योग्राफिक से रिलेवेंट या रेसलिंग से रिलेवेंट, मेडिसिन के लें या कोई बॉडी बिल्डिंग के हवाले से, मतलब उससे रिलेवेंट जितनी चीज़ें, वो एक ऐड जो है वो मेरी IP पे सेट कर दी गई, IP पे सेट कर दिया और वो चले जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, एक खूबसूरत इन्होंने बात कही अदनान साहब ने कि जो हम बात कर रहे हैं वो एप्लीकेशन में जा रही है, वहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो जो सर्वर है, जो IP है, वहाँ पे सुनी जा रही है। और मैं क्या बात कहूँ कि जब हम यहाँ से जिनके हम उम्मती हैं, जिनके हम गुलाम हैं, उनका जब जिक्र करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनको याद करते हैं, तो मुमकिन ही नहीं शाह बशर को खबर ना हो। हम यहाँ से पुकारें, वो वहाँ से ना सुने, और हम कहीं से भी पुकारें,
ہم کہیں سے بھی پکاریں اور وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عشق کو بھی، ہمارے اخلاص کو بھی، ہماری محبت کو بھی وہ سن بھی رہے ہیں. وہ ہمارے جو اتنا زیادہ عشق ہے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. اسی پیرائے میں بنا تاخیر دعوت دوں گا، کسی تعارف کے محتاج نہیں. طارق اسماعیل صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک؟ کیسی طبیعت، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خوش آمدید آپ کو ہمارے پروگرام میں. عشق سیام میں کون سا کلام سنانا پسند کریں گے آج؟ حامد بدایونی صاحب کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر بالکل، بتاؤ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. زبان پر شکوائے در جو علم لایا نہیں کرتے. زبان پر شکوائے در جو علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. یہ ہے دربار آقا کا یہاں ملتا ہے بے مانگے. یہ ہے دربار آقا کا یہاں ملتا ہے بے مانگے. یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں. طارق اسماعیل صاحب اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. میں بڑھنا چاہوں گی علامہ صاحب آپ کی طرف، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اموات کے حوالے سے، موت کے حوالے سے، کہ اگر رمضان میں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے کیا معاملہ ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ رمضان المبارک میں عذاب قبر کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک میں عذاب قبر کے حوالے سے حضرت انس کی جو روایت مجھ سے قبل صاحب نے بھی پڑھی
کہ حضرت انس کی روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں مرے اس پر سے جو ہے وہ عذاب قبر کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ جو محدثین نے اس کی وضاحت فرمائی وہ یہ فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں عذاب قبر کو اٹھا لیا جاتا ہے، جس طرح شیطان کو رمضان کے مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، اسی طرح سے عذاب قبر کو رمضان کے مہینے میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں مردوں سے عذاب قبر کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جو حدیث میں الفاظ ہیں وہ یہاں تک ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ عذاب نہیں ہوتا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اگر ایک شخص ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی حساب و کتاب ہے تو یہ جو روایت ہے وہ دلالت کر رہی ہے صرف رمضان کے مہینے تک، رمضان کے مہینے کے بعد پر یہ روایت دلالت نہیں کرتی۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی ایک سوال بالکل میں مختصر اور اختصار کے ساتھ آپ کو جواب چاہوں گا کہ ہم نے عام لوگوں میں دیکھا ہے، حلقہ احباب دوست میں اور نوجوانوں میں بھی یہ گفتگو کرتے ہوئے کہ جی جلدی چلے جائیں گے اس دنیا سے تو گناہ کم ہوں گے، تو اس طرح کی گفتگو کرنا کہ جی ہمیں اگر جلدی اس دنیا سے چلے جائیں گے تو گناہ کم ہوں گے ہمارے، اس کو کیا دین کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ کیا ایک سوچ ہے یہ سوچ رہے کہ جلدی چلے جائیں گے تو گناہ کم ہوں گے؟ کاش یہ سوچ لیا جائے کہ میری عمر اور طویل ہو جائے اور میں اور زیادہ نیکیاں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ اگر میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے صاحب معذرت، میں نے آپ نے فرمایا کہ جب کسی چھوٹے کو دیکھو تو یہ گمان کرو کہ اس نے عمر کم پائی ہے تو اس نے گناہ کم کیا، اور جب کسی بڑے کو دیکھو تو یہ گمان کرو کہ اس نے عمر طویل پائی ہے، اس نے نیکیاں بھی زیادہ کی ہیں۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اس زاویے کو اگر سمجھ لیا جائے تو اس سوال کا جواب بہت آسان ہو جائے گا آپ کو۔ اچھا، آج کے اس پروگرام کی طرف سے ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، جہاں اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ ہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بات لکھی ہے کہ رمضان میں موت پر آپ کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اسی طرح سے فرمایا کہ جو عرفہ میں مرے گا اس کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تیسرا پوائنٹ، جو صدقہ دیتے وقت مرے گا وہ بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے معاملات میں اچھی چیزوں کو شامل کریں تو ہمارا اختتام اچھا ہوگا۔ ماشاءاللہ، بالکل ہمارا اختتام اچھا ہوگا، اور ہم بھی اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف ہی روا دوا ہیں۔ اپنے تمام جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان کے ہم مشکور ہیں، آپ بحیثیت ثنا خواہ ہماری اس نشست کا حصہ بنے، ہم آپ کے بھی مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنی اچھی نعت سنائی، اور ظاہر ہے ہماری یہ پینل والے تو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی موجود ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اسپانسرز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ جنہوں نے اتنا اچھا کنٹریبیوشن ہماری اس خوبصورت شام کو سجانے کے لیے کیا ہوا ہے۔ جی انور۔ جی بالکل، ہم السید ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کا بھی شکریہ ادا کریں گے، ہم حنیفیہ فوڈ کا بھی شکریہ ادا کریں گے، اور جتنے بھی ہمارے اسپانسرز ہیں آپ دیکھتے رہتے ہوں گے ان سب کا ہدیہ تشکر ادا کریں گے۔ اور کیوں نہیں ادا کریں کہ یہی وہ لوگ ہیں اور انہی کی ہمت ہے کہ جنہوں نے اپنے حلال رزق سے ہمیں اسپانسر کیا، اور ہم نے یہ نشریات، یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ایک آسانی والا ماحول پیدا ہوا۔ اور ناظرین محترم، شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے، اور یہ تلقین کریں گے کہ اپنا بہت خیال رکھے گا۔ ناظرین، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھے گا، اپنے ایمان کا، اسلام کا اور اس پاکستان کا۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے انداز، ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے کہیں نہیں جائے گا۔ ہم ایک بریک ہوگا، اس بریک کے بعد یہاں پر آپ کو میزبان مختلف نظر آئیں گے، مگر آپ سے جب ہماری ملاقات ہوگی، انٹریکشن ہوگی، آپ کے لیے ہم ضرور کوئی نہ کوئی ایسا موضوع کا انتخاب کریں گے جو آپ کی زندگی کو تبدیل کرے، آپ کی اندرونی بیرونی زندگی کو تبدیل کرے۔ اپنا خیال رکھے گا، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود و سلام آقا دو جہاں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ وینس ٹی وی کے ناظرین کو ایک دفعہ پھر پروگرام عشق سیام میں آپ کا میزبان تیمور اکرم خوش آمدید کہتا ہے۔ میرے ساتھ میری ساتھی میزبان سندس علی موجود ہیں۔ بہت شکریہ تیمور بھائی آپ کا کہ آپ میرا انٹروڈکشن دے رہے ہیں، اور ناظرین بخوبی جانتے ہیں کہ عشق سیام کی جو یہ خوبصورت ٹرانسمیشن ہم ہمیشہ سجایا کرتے ہیں، تو اس کی اپنی اس کے دونوں سیگمنٹ کی نا ایک اپنی بو ہے، اپنی خاص خوشبو ہے، اور دونوں ہی اپنی اپنی نوعیت میں مختلف ہیں۔ اچھا سندس، ہم پچھلے دنوں یوتھ امپاورمنٹ کے اوپر بات کر رہے تھے، پاکستان میں نوجوانوں کے مستقبل پہ بات کر رہے تھے، وومن امپاورمنٹ کے اوپر بات کر رہے تھے، اس پر
بنو یوتھ کے کردار پر بات کر رہے تھے کہ بنو یوتھ کی آواز نے کیا کردار ادا کیا ہے نوجوانوں کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے میں. تو اسی ضمن میں آج ہمارے ساتھ انتہائی خوبصورت مہمان ایک اور جنہوں نے ابھی ہمیں شو میں جوائن کیا ہے. آپ کا نام میرے بھائی جانب سہیل دانش صاحب, آپ بنو یوتھ کی آواز سے وابستہ ہیں. ہم آپ کی طرف آئیں گے, ہم آپ کا تعارف بھی کروائیں گے اور ہم آپ سے بہت اچھی اچھی باتیں بھی کریں گے, لیکن اس سے پہلے سندس آج آپ کے ساتھ کون کون سی نعت خواں موجود ہیں؟ بالکل میرے ساتھ ثنا خواں ہمیشہ کی طرح موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہین فردوس صاحبہ, السلام علیکم. اور دوسری ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ فاطمہ شاہ, السلام علیکم. کیسی ہیں فاطمہ آپ؟ ٹھیک ہے. شاہین صاحب, ہم چاہیں گے کہ بغیر کسی بریک کے ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ نعت کے ساتھ اپنے اس آگے نشست کو جو ہے وہ آگے لے کر چلیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فلک سے درود و سلام آ رہا ہے, فلک سے درود و سلام آ رہا ہے, زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے, فلک سے سلام آ رہا ہے. اتر کر ہرا سے خدا کا پیامی, اتر کر ہرا سے خدا کا پیامی لیے زندگی کا پیام آ رہا ہے, لیے زندگی کا پیام آ رہا ہے, زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے, فلک سے درود و سلام آ رہا ہے. شفاعت کی اس کو سند میں سمجھ لو, شفاعت کی اس کو سند میں سمجھ لو, وہ کہہ دیں کہ میرا غلام آ رہا ہے, وہ کہہ دے کہ میرا غلام آ رہا ہے, زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے, فلک سے درود و سلام آ رہا ہے, سلام آ رہا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کر رہی تھی شاہین فردوس صاحبہ. سہیل دانش صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جو بنو یوتھ کی آواز کے ساتھ محبتیں ہیں اور آپ کا جو اس کا ایک ساتھ تعلق ہے, آپ کی جو جرنی ہے, آپ نے کہاں سے اس سارے سلسلے کو شروع کیا, ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی زبانی ہی ہمیں کچھ بتائیں. سب سے پہلے تو السلام علیکم اور تھینک یو ویری مچ کہ اتنے خوبصورت پروگرام میں آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا. اور بنو یوتھ کی آواز آج کل کے جو نوجوان ہیں, آج کل کے جو یوتھ ہے, ان کی پاور ہے. بالکل. اور جو ان کے فاؤنڈر ہیں ان کا اسپیشلی نام لینا چاہوں گا, کیونکہ انہوں نے ہر اس انسان کو, ہر اس
नौजवान को प्रमोट किया जिसके अंदर टैलेंट है। बिल्कुल। तो उस टैलेंट को लेते हुए काफ़ी सारे लोग जो हैं आज अपना रोज़गार भी कर रहे हैं। तो इसलिए फिर बनो यूथ की आवाज़ हम सब की भी पावर है। अच्छा दानिश साहब, आपका ताल्लुक सिंगिंग के शोबे से भी है, जी बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बनो यूथ की आवाज़ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है नौजवानों को। आप जैसे कितने ही सिंगर ऐसे होंगे जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल सका, बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक होते हैं, लेकिन वो टैलेंट उजागर नहीं हो पाता। तो इस मामले में भी आप बताएं कि आप बनो यूथ की आवाज़ के किरदार को किस तरह से देखते हैं? जी, मैं इस तरह से देखता हूँ कि उन्होंने हमेशा प्यार, मोहब्बत, इखलाक और अपनी पावर को बढ़ाते हुए लोगों को, मीन्स के कहते हैं बहुत ज़्यादा रश, बिल्कुल ठीक है ना, तो हमेशा जो भी उनके पास आया उनके काम को देख के आया। तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, गुलाम मोहिउद्दीन भाई। बहुत ही नफीस इंसान है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपना काम करते हैं और वो अपने काम से दिखाते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। अपने काम के साथ मुखलिस तरीन इंसान है। ऐसे बिल्कुल। और हमेशा से मैं जब से उनके साथ जुड़ा हूँ 3-4 साल से, तो उन्होंने अपने काम से मुझे भी अपने साथ जोड़ा। और भी मैंने अभी तक जो देखा तो वो अपने काम से हमेशा नौजवानों को, बहुत सारे लोगों को जो सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, तो उनके साथ खुद ही ऑटोमेटिकली, जैसे कहते हैं ना मैग्नेट, उनके अंदर कोई मैग्नेट है, वो मैग्नेट के जरिए लोग इकट्ठे होते चले जाते हैं और वो पावर इसी तरह से बढ़ती है कि जब वो अपना काम दिखाते हैं तो लोग फिर पीछे आते हैं। तो सुंदर दानिश एक खूबसूरत आवाज़ के मालिक भी हैं, क्यों ना हम अपने नाजरीन को 2 नातिया कलाम दानिश की ज़बानी सुनवाएं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। दानिश साहब, आप हमारे नाजरीन के लिए नातिया कलाम कोई भी जो आपको पसंद हो। बिल्कुल, एक बहुत ही खूबसूरत कलाम है, वो मैं सुनाता हूँ आपको। कोई तो है माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत निज़ाम हस्ती, कोई तो है खूबसूरत, बहुत ही प्यारा कलाम आप हमें सुना रहे थे। और बिल्कुल वही खुदा है जो तमाम लोगों को के दिलों में ये डालता है कि उनसे उस रब्बुल इज़्ज़त ने क्या काम लेना है। और ये बनो यूथ की आवाज़ को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुना है कि वो इस यूथ के लिए जो है वो और काम ऐसे नगीने आपको बनो यूथ की आवाज़ में ही मिलेंगे। बिल्कुल। अब जब क्योंकि मैंने सारे कलाम का और इस मामले का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ दिया, तो मैं जाना चाहूँगी हाफिज़ साहब की तरफ। हाफिज़ रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे रेगुलर पैनलिस्ट भी हैं। हाफिज़ साहब, आप कैसे देखते हैं कि क्योंकि दीन खुदा ने भी तो हमें बहुत कुछ बताया है, सिखाया है, यूथ एम्पावरमेंट के हवाले से हमारा इस्लाम क्या कहता है? इस वक्त मैं यूथ एम्पावरमेंट के हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में कोट करना चाहूँगा कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूनु हवाहु तबीअन लिमा जिअत बिह। माशाअल्लाह। आपने फरमाया कि जब तक तुम में से कोई शख्स वो कामयाब नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिश इसके मुताबिक ना हो जाए जो तालीम में लेकर आया हूँ। बेशक। तो मैं यूथ को इस हदीस की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जब तक आपकी ख्वाहिश उस तालीम के मुताबिक ना हो जाए
जो नबी अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब हमारी ख्वाहिश क्या है? जो हमारे बनने की ख्वाहिश है, हमारे कुछ करने की ख्वाहिश है, ठीक है, इन तमाम ख्वाहिशात को हमें चेक लगाना पड़ेगा। एक हमारे नौजवानों को एक चेक लगाना होगा कि भाई हमें हमारी जो ख्वाहिश है वो उस तालीम के मुनाफे तो नहीं है, उस तालीम के बरखिलाफ तो नहीं जा रहे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेके आए। तो अगर कामयाबी हासिल करनी है, अगर बड़ाई हासिल करनी है, अगर दुनिया आखिरत का कामयाबी अपने हाथों में लेना है, तो इसके लिए हमें उस तालीम के मुताबिक अपने आप को ढालना होगा। हाफिज साहब, आपकी बात से मैं अखज़ कर सका हूँ कि आज के नौजवानों को डू और डजंट में फ़र्क जानकर जीना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो हम क्योंकि आका नामदाद हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर ही रहे हैं, तो आपके पास एक और खूबसूरत नात आज मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा फातिमा शाह। मैं चाहूँगी कि आप भी एक नातिया कलाम हमारे साथ ज़रूर शामिल करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे हरम ए शहंशाहिदी, तुम पे हरदम करोड़ों दुरूदो सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही प्यारा कलाम हमें सुनाने की सादत हासिल कर रही थी सैयदा फातिमा शाह। और एक दफ़ा फिर मैं हमारे गेस्ट सैयद दानिश की तरफ जाना चाहूँगा। दानिश साहब, मैं आपसे बड़ा एक सवाल, आप यूथ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम आज देख रहे हैं आज के माशरे में हमारी यूथ बेताशा टैलेंटेड है, प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, माशी तंगी अलग है। पाकिस्तान में गुर्बत से नीचे की जो लकीर है वो बढ़ती ही चली जा रही है, तो यूथ डिप्रेस भी है। तो आप इसका हल क्या देख रहे हैं एज अ यूथ, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूथ ऑफ पाकिस्तान? आप क्या कहेंगे कि यूथ को अपने टैलेंट को शोकास्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, और हमारे अंदर हमारी यूथ में से पेशेंस लेवल क्यों खत्म होता जा रहा है? यूथ को हमेशा देखें, अगर कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जैसे बनो यूथ की आवाज़ की बात करूंगा क्योंकि मैं इनसे रिलेटेड हूँ, तो ये हमेशा किसी ना किसी इवेंट में किसी ना किसी नात खान को, किसी ना किसी
होस्ट को, किसी ना किसी सिंगर को और इस तरह से किसी ना किसी आर्टिस्ट को अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाते हैं। सही। तो बस कुछ टाइम के लिए आते हैं लोग और फिर उसके बाद वो समझते हैं कि मैं आर्टिस्ट बन गया हूँ, तो इसीलिए हमारी यूथ पीछे है। कोई भी अगर आएगा तो उसको स्टे करना चाहिए, उसको उसके साथ। इसमें यहाँ एक है ना दानिश साहब के होता क्या है कि अभी हमने 2 दिन भी सही से फील्ड में नहीं गुजारे होते तो हमने अपने नाम के साथ सीनियर लगा लिया होता है। ये बहुत ज्यादा आज का मसला है। प्रॉब्लम तो जी, जी। आजकल तो सोशल मीडिया पे मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं बिल्कुल। जहाँ पे वो कहते हैं जी मैं हीरो बन गया हूँ, मैं हीरोइन बन गई हूँ, मैं सिंगर बन गया हूँ, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जबकि पीछे जो लोग इतनी लंबी जर्नी करके आए, इतनी मेहनत उनकी लगी हुई है, तो फिर वो तो ऐसा ही है। तो जो मेहनत करता है ना उसको पता है। बनो यूथ की आवाज़ ने मेहनत की। बिल्कुल। इन्होंने एक, मुझे जहाँ तक पता है, इन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया बनो यूथ की आवाज़। उस प्रोग्राम को फिर इनका स्लोगन बन गया कि बनो यूथ की आवाज़। एक मीन्स के नौजवानों की पावर के लिए काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। सही। तो आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने इस बनो यूथ की आवाज़ से फनकार बने, आर्टिस्ट बने, लेकिन अब वो इधर उधर हैं, पता नहीं है। तो जब आप एक प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, कहते हैं एक जगह पत्थर पड़ा हुआ भारी होता है, तो फिर आपको नाम भी मिलता है, आपको मकाम भी मिलता है। आप कहने का अलमुख्तसर मकसद यही है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और अपने काम के साथ बंदा मुखलिस होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद हैं अनस रज़ा कादरी। मैं चाहूँगी कि आप ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे कुलूब को मुनव्वर करें। हाँ मुस्तफा ज़ात यकता आप है, 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 यक ने जिसको यक बनाया आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है, और आपकी खातिर बनाए तो जहां, आपकी खातिर बनाए तो जगह, आपकी खातिर बनाए दो जगह, आपकी खातिर बनाए दो जगह, अपनी खातिर जो बनाया आप है, अपनी खातिर जो बनाया आप है, और आपकी तलअत को देखा जान दूं, आपकी तलअत को देखा जान दूं, आपकी तलअत को देखा जान दूं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है, मुस्तफा ज़ात यकता आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है, और आप जैसा कोई हो सकता नहीं,
जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप है, अपनी हर खूबी में तन्हा आप है, मुस्तफा ज़ात यकता आप है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम का इंतखाब किया अनस रज़ा कादरी ने। मैं हाफिज़ साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी कि दीन इस्लाम क्योंकि यूथ एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ेकार था वो क्या था? इस पर भी मैं एक हदीस कोट करना चाहूँगा जी कि दीन इस्लाम ने जो नौजवानों को गाइडेंस दी है, रहनुमाई दी है, अहादीस तय्यबात जो मौजूद है, अगर ये हमारे ज़िंदगी की कसौटी बन जाए तो बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़दा लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसने मेरे लिए मोहब्बत इख्तियार की। आज बड़ा मसला है कि हम कुछ कर रहे होते हैं, उसका मकसूद चेंज हो जाता है। सही। तो मन अहब्बा लिल्लाहि, जिसने मेरे लिए मोहब्बत की, व अबग़दा लिल्लाहि, मेरे लिए बुग़्ज़ रखा, व आता लिल्लाहि, मेरे लिए अता किया, व मनअ लिल्लाहि, मेरे लिए मना किया, फ़क़द इस्तकमल ईमान, उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। तो आज जो यूथ का सबसे बड़ा मसला है वो ईमान की तकमील, ईमान की पुख्तगी का। और ये 4 फार्मूले अल्लाह के नबी रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमा दिया है कि जब इंसान किसी से मोहब्बत इख्तियार करे तो अल्लाह के लिए, जब किसी से बुग़्ज़ रखे। अब तक तो दीन इस्लाम की हमने ये बात समझी कि भाई हमें बुग़्ज़ इख्तियार नहीं करना, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है तो कहा बुग़्ज़ किससे रखेंगे? वो सोहबत जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे, वो क़ुर्बत जो तुम्हें अल्लाह के रसूल के तरीक़े से दूर कर दे। फिर कहा वग़दा व आता, जब कुछ आता करो तो फिर वो अल्लाह के लिए आता करो, उसका मकसूद ये ना हो कि लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे, लोग तुम्हें सखी कहेंगे। फिर इसी तरह से व आदा लिल्लाहि व मना लिल्लाहि, जब किसी को मना करो कि मैं ये तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ रहा, मैं तुम्हें ये नहीं दे रहा, तो इसका मकसूद जो होना चाहिए वो रब ताला के ज़ात होना चाहिए, अल्लाह के लिए करना चाहिए। तो इससे हमारा ईमान मुकम्मल होगा, ईमान जो है पुख्ता होगा। और यूथ जब अपने ईमान की पुख्तगी की बात होगी तो हमारा एक कल का भी मौजूद है, हम बाहर जाते हैं हमारे नज़रियात चेंज हो जाते हैं। वजह यह है कि हमारा अपना रंग मजबूत नहीं होता। तो हमें दीन इस्लाम को इस तरह से सीखने और समझने की ज़रूरत है। तो हम यूथ पे बात कर रहे हैं, हमारे साथ एक और यूथ नौजवान मौजूद है हमारे पास, और बहुत वोकल शख्सियत मौजूद है। मैं अपने नाजरीन से तारुफ करवाना चाहूँगा जमात शम्स साहब का। आपका ताल्लुक़ ताजिर बरादरी से है, आप बहुत ज़्यादा वोकल हैं, नौजवानों के लिए काम करते हैं, सोशल वर्कर भी हैं आप। सबसे पहले आपको हमारी ट्रांसमिशन इश्क़ सय्याम में खुशामदीद कहेंगे। जमात, सबसे पहले हमें ये बताएँ कि पाकिस्तान में इस वक्त ताजिर बरादरी किन मसाइल से दो चार है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस चैनल में मुझे बुलाया। और ताजिरों के जो सबसे बड़ा मसाइल है वो है स्टेट क्राइम, जो कि कराची में सबसे ज़्यादा स्टेट क्राइम में बहुत सारे ताजिर परेशान हैं तिजारत करने में, क्योंकि वो रात को अपनी शॉप बंद कर कर, छोटे हों बड़े हों सरमायादार हों कोई भी, वो अपने घर की जानिब जाते हैं। तो स्टेट क्राइम में उनके जान और माल दोनों चीज़ तहफ़्फ़ुज़ नहीं है इन चीज़ों में। तो ये ताजिर बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में हरासा है, जो कि इसमें ताजिरों को सहूलत फराहम की जाए गवर्नमेंट की तरफ से। और ताजिर जो है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, तो तिजारत जो है वो पाकिस्तान को चलाता है, और कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू देता है, जो पाकिस्तान चल रही है, माशी चल रही, माशियत वगैरह तमाम चीज़ें जो कराची से ही बिलोंग करती है। तो तिजारत में ताजिरों को सहूलत फराहम की जाए। सिक्योरिटी के मामला तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, तमाम प्रोडक्ट वगैरह सारी चीज़ें, कंपनी लॉन्चिंग वगैरह तमाम चीज़ों में तिजारत चाहिए हो, ताजिरों को सहूलत चाहिए होती है इस हुकूमत की तरफ से, जो नहीं मिल रही है अभी। तो हाफिज़ साहब, जमात ने एक बहुत अहम मसले की तरफ इशारा किया।
टारगेट किलिंग कराची का बहुत अहम मसला है इस वक्त। सबसे पहले मैं इसमें आपसे जानना चाहूँगा कि हमने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी कि जिसने एक शख्स का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, उसके बावजूद ये टारगेट किलिंग का सिलसिला, किसी को मामूली बातों पर मार देना, किसी की जान ले लेना, इस्लाम इस पर क्या मौक़िफ़ देता है? मुख्तसर में यही कहना चाहूँगा, ये असल में दीन से दूरी के सबब है। हम दीन से दूर हो गए, हमें अगर हम इस बात को जान जाते हैं कि अगर किसी को कत्ल करना ऐसा है कि उसके जितने गुनाह हैं वो अपने सर ले लेना है, अल्लाहु अकबर, और वो तो बरुज़्ज़मा हो गया। और बास कत्ल की सूरत जो है वो शहादत है। फरमाया ऐसी कत्ल की सूरत जो किसी को कत्ल किया जाए और वो अस्पताल तक भी ना पहुंच सके, उसको कोई ट्रीटमेंट ना मिले और दूसरे वक्त के नमाज से पहले ऑन द स्पॉट उसका इंतकाल हो जाए, तो बड़े शहादत के ज़ुमरे में वो शख्स आ जाता है और उसको ज़िंदगी भर के गुनाह उसके सर डाल दिया जाता है। अल्लाह पाक महफूज फरमाए जो हालात है, क्योंकि ये जो लोग आजकल स्नैचिंग और कर रहे हैं, इसके लिए बताया जाता है कि रिसर्च में पढ़ रहा था, ये लोग नशे में होते हैं, कोई नशा करके आते हैं, चीज़ें ले लेते हैं लोगों से, फिर भी मार देते हैं। तो इसकी वजह जो है वो नशे की भी रोकथाम करने के लिए हमारे जो सरबराहान हैं, जो अहले इक़्तिदार लोग हैं, उनको इस पर इक़दाम करने की वर्किंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल हमारे साथ एक कमसिन सनाफा मौजूद हैं, बहुत प्यारे से हैं और इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम हमारे साथ शामिल करेंगे। गुलाम यासीन हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सुना रहे हैं आप हमें? माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। अर्श आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, वो उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। गुलाम यासीन हमें बहुत ही प्यारी आवाज़ में और बहुत कम से ये इस बात को उजागर करती है कि इश्क़ रसूल का ताल्लुक उम्र से नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है, और यही उम्र होती है जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये एक यूँ कह ले कि खुश नसीबी है हमारी, और ये हमारा दीन है जो हमें ये सिखाता है कि जब हम छोटे से होते हैं ना, तो स्कूल से हमारी ये तरबियत शुरू होती है कि हम ज़िक्र रसूल की तरफ राग़िब होते हैं, और फिर वो एक दिन जाके जो है माशाल्लाह हमारी गुत्ती में इश्क़ रसूल मौजूद होता बिल्कुल है। ऐसा तो हमारे साथ जमात मौजूद है। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा और आपका ताल्लुक हिकमत से भी है, तो
मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दो तरह के तर्ज इलाज है, एक तो रिवायती इलाज है, एलोपैथिक इलाज, और एक है हिकमत। हमने ये भी सुना है कि हिकमत में मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज मौजूद है। तो क्या वजह है कि हमने देखा कि जो रिवायती इलाज इस वक्त मौजूद है अस्पतालों में, बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ होता है, लेकिन हिकमत के अंदर अब लोग वो शिफा का वो पहलू नहीं रहा, या लोगों का रुझान हिकमत की तरफ नहीं रहा? इसके जवाल की वजह क्या देख रहे हैं आप? इसकी सवाल की वजह सबसे पहले ये है कि जो सनद याफ्ता हकीम है वो प्रैक्टिकली तौर पे उन्हें मालूम होता है कि तमाम चीज़ें किस किस चीज़ों में किस किस पेशेंट को कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ इंग्रेडिएंट्स देना है, किस वक्त देना है और कौन सी दवाइयाँ उस टाइम देनी है। जो हर गली हर चौराहे में एक एक बोर्ड लगा के बैठे हैं, उनके पास कोई तालीम नहीं है, सबसे पहला। सेकंड ये कि वो किसी की शागिर्दी वगैरह उन्होंने नहीं की है, सिर्फ उन्होंने सोशल मीडिया से हिकमत सीखा है। किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है, तो उनको पता ही नहीं है उन चीज़ों के लिए उन्हें क्या चीज़ें उसके साथ देनी है जो उसके साथ भी फ़ायदेमंद साबित हो। और मतलब नीम हकीम खतरा जान, नीम हकीम खतरा जान। तो इसमें सबसे पहले जो बेहतरीन है वो है, बेहतरीन लाई जाए कि जिसके पास दस्तावेज़ात मौजूद है, जो सनद याफ्ता हकीम है। इसका बाकायदा हुकूमत ने खुद हर्बलिस्ट बनाया हुआ FTJ फाजिल तिब्बी जर्रात, जो इस्लामाबाद से तमाम सूबे में इनकी ब्रांच मौजूद है। इसके FTJ इसका नाम है फाजिल तिब्बी जर्रात, नेशनल तिब्बी काउंसिल इस्लामाबाद कासम तिब्बिया कॉलेज से ये होता है। जो 4 साल का ये सनद है, आप उसको हासिल करें, प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है, उसमें तमाम चीज़ें आप सीखेंगे तो आप तमाम जड़ी बूटियों में महारत हासिल करेंगे, जिसमें आप तमाम लोगों को दवाइयाँ अच्छी प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि आप किसी को दवाइयाँ अच्छी देंगे तो ये भी एक खिदमत खल्क और खिदमत इंसानियत है। तो अभी हम नीम हकीम की जो बात कर रहे थे, हमने देखा कि कराची की सड़कें नीली पीली कर दी हैं इन नीम हकीम ने। तो आप लोग, आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपका ताल्लुक, आप प्रोमिनेंट हिकमत की तरफ आपका ताल्लुक है, तो आप लोग इस पर क्या किरदार अदा कर रहे हैं इसके सदबाब के लिए? देखिए, मेरा बेसिकली जो हिकमत से ताल्लुक है वो मेरे वालिद मोहतरम हकीम है, मेरे दादा हकीम थे, तो मैं हकीम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसका सबसे पहले एक्शन जो है वो है सरकारी तौर पे SDM है, DC हैं, फूड इंस्पेक्टर हैं, तमाम अदारे मौजूद हैं। वो खुद अपनी कार्रवाई अपनी सही तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला तमाम जो जितने जाली बैठे हुए हैं, जो जिनके पास सनद नहीं है, जिनको नहीं आती हिकमत, तो उनको वो लगाम डालें, जिनको आती है उनको ये अपना खुद वो ज़ाब्ता अपना प्लेटफॉर्म फराहम करें कि आपकी बात का मतलब ये है कि कानून मौजूद है, उस पर अमल दरामद करवाने की जरूरत है। नहीं है। और दूसरा फिर उनके कहने का मकसद ये भी है ना कि सर्टिफाइड हकीम हो। जी जी बिल्कुल। जो हिकमत का काम कर भी रहे हैं वो भी सर्टिफाइड हो। ऐसा तो सिर्फ हिकमत में नहीं है ना जमात साहब के, हम देखते हैं तो जो डॉक्टर्स हैं आजकल ऐसे वो भी गली गली में हमें बैठे हुए नजर आते हैं जो कि सर्टिफाइड नहीं होते। आपकी बात दुरुस्त है, पर मेरा तो ताल्लुक हिकमत से, मैं डॉक्टर की तरफ मुझे इतना इसका इल्म नहीं है, तो मैं उनकी तरफ जिस फील्ड से मेरा ताल्लुक है मैं उसको ज़्यादा अहमियत का हामिल हूँ। डॉक्टर में नहीं है फिलहाल। तमाम जो जाली हैं, जिनके पास नहीं है, जिनको हिकमत नहीं आती, उनको सरकारी तौर पर खुद रियासत मौजूद है, रियासत कार्रवाई करे। तो सुंदर, हम प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में चूंकि मौजूद हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो हाफिज़ साहब से हम एक अहम सवाल मेरे जहन में आया, हम कर लें। तो हाफिज़ साहब, हम ये देखते हैं आज का नौजवान, मेरे सवाल को समझने की कोशिश करिएगा आप। आज का नौजवान फेसबुक के ऊपर उसके 20-25 हज़ार फॉलोअर्स हो गए, कोई 1 लाख व्यूज़ आ गए, या किसी भी शोबे में जाकर उसका थोड़ा सा नाम बनता है, हमने देखा उसका कॉलर ऊंचा हो जाता है, उसके अंदर एक उसके रहन सहन का तरीका बदल जाता है, उसके बातचीत का तरीका बदल जाता है, उसके चलने का तरीका बदल जाता है। हमने दूसरी तरफ देखा कि इस्लाम तो इज्जो इनकिसारी का दर्ज देता है। अल्लाह के नबी आका मौला हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का के मौके पर जा रहे थे तो लिखने वालों ने लिखा कि आपकी जो ठोड़ी है वो ऊंट से टच हो रही थी, मतलब इतना आपके अंदर झुकाव मौजूद था। तो आज के नौजवानों के अंदर वो झुकाव क्यों नहीं है? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है और वक्त की ज़रूरत है कि जो आज का नौजवान है वो इज्जत इनकिसारी नहीं करता। वजह यह है कि ये एक तरबियत का मुस्तकिल फ़क़दान है जो हम घर से नहीं पाते, जो हम अपने फैमिली में चीज़ों में, असल में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ट्रांसफ़र होती है। अब हम हमारे घर का जो माहौल होता है चीज़ें, अच्छा बाज़ फैमिलीज़ में आप देखेंगे कि उनके अंदर शुरू से एक माहौल होता है, घर में एक तरबियत का माहौल होता है जिसको आमतौर पर हम ये कहते हैं, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग पैसे कमा कर तो कहते हैं वो
वो एक बड़े भोंडे लफ्जों में कहते हैं नए दौलतिया जो होते हैं, नए दौलतिया उनके का साथ लफ्ज बड़े इस्तेमाल मसाइल किया होते जाता हैं। है। और जो खानदानी लोग होते हैं उनके पास जितना भी पैसा आ जाए, चीजें आ जाए, उनके कहीं कॉलर नहीं खड़े होते हैं, उनके साथ कहीं ऐसा मामला और नहीं शोहरत होता, वो हासिल कहीं करना और पैसे नहीं शोहरत करते। को संभालना, ये भी दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल ऐसे ही, मैं बिल्कुल चाहूंगी बिल्कुल। दानिश साहब से मैं जी, जी, चाहूंगी बिल्कुल। कि अब यूथ के हवाले से हम बात कर रहे हैं और आप भी अपनी जर्नी बता रहे हो, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की कि अभी 4 दिन नहीं होते फील्ड में आए और अपने साथ सीनियर का टैग लगा लेते। क्या ऐसी बातें हैं जो आप हमारी यूथ से कहना चाहेंगे कि जिससे उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में और अपने करियर को लेकर भी इम्प्रोवाइजेशन आ सके उनके अंदर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कोई प्लेटफॉर्म मिलता है उसको यूटिलाइज़ करें अच्छे तरीके से, वहाँ पे स्टे करें लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है ना। अगर आप स्टे करेंगे तो आप एक प्लेटफॉर्म से नज़र आएंगे। अगर आप वहाँ से नज़र नहीं आएंगे, कहेंगे जी मैं बन गया हूँ, सब कुछ हो गया मेरा, तो फिर आप गायब हो जाएंगे, फिर आपको दूसरा कोई नहीं लेगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि ऑलरेडी ये एक प्लेटफॉर्म पे गया है, वहाँ से 2-4 लोगों ने इसको जाना है, उठाया है, बात किया, प्रोडक्ट नहीं रहेंगे तो यस। तो आप अगर एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, वहाँ लॉन्ग स्टे करें, वहाँ पे आपको लोग जाने, आप लोगों से मिलें, तो मैं नए आने वालों से यही कहूँगा, जैसे बनो यूथ की आवाज़ है, मैं तकरीबन 4 साल से हिस्सा हूँ उसका, और जब तक मैं हूँ, मैंने कहा होगा गुलाम मुहीउद्दीन भाई से कि जब तक मैं हूँ तो मैं आपके साथ हूँ। संदस, हम बात आपकी काट रहे हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है और नातख़्वाह मौजूद है आपके पास। बिल्कुल, हमारे पास नातख़्वाह मौजूद हैं और पहले भी हमारी नशिस्त का हिस्सा बन चुके हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ में पढ़ते हैं। हम चाहेंगे कि आप ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि जाने लगो पर हो तुम सामने आ जाना, दिल में तुझे रख लूं, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, आका क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, रुख को छुपा बैठे मेरे आका, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, दिल में तुझे रख। बहुत खूबसूरत अंदाज में नातख़्वाह गुलहाए अकीदत में अपनी अकीदत पेश कर रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में आपने जाना, आपने हमारे नन्हे मुन्ने नातख़्वाहों को भी सुना, सीनियर नातख़्वाहों को भी सुना, और आज के प्रोग्राम का मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा, इज्ज़ो इनकिसारी, इस्लाम माफ़ कर देने को पसंद करता है, इस्लाम की मिजाज के अंदर झुकाव है। आप अपनी गलती पर
पीछे हट जाना, ये इस्लाम का मिजाज है। पता नहीं क्यों हमने पिछले दिनों एक न्यूज़ सुनी कि एक नौजवान को सिर्फ मस्जिद से निकलते हुए हाफिज साहब कंधा टच हो जाने पर दूसरे नौजवान ने कत्ल कर दिया। मतलब हम इस हद तक जा चुके हैं, माशरे की गिरावट इससे ज़्यादा अदम बर्दाश्त ख़त्म होता जा रहा है। तो रमज़ान का मैसेज है, आज का मैसेज है, इस प्रोग्राम का मैसेज है कि अपने अंदर बर्दाश्त करने की आदत डालिए। दूसरों से कोई गलती हो जाए माफ़ कर दीजिए, आपसे कोई गलती हो जाए माफ़ी मांग लीजिए। बिल्कुल बड़ा बाबरकत महीना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें छमाछम बरस रही हैं और यही वो मौका है कि जहाँ पर हम एक नेकी का जो हमें बदला है वो 70 गुना ज़्यादा मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा अपने दामनों को नेकियों से भर सकते हैं ज़रूर भरें। बहुत शुक्रिया। वीनस टीवी के नाजरीन से इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह कल एक बार फिर खूबसूरत मेहमानों के साथ, खूबसूरत गुफ्तगू के साथ आपका मेज़बान तैमूर अकरम और सुंदस अली आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।